Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. It is my great pleasure to welcome you all on behalf of the Law Students Council Pakistan to an exciting and insightful webinar. The Law Students Council webinar series offers a digital forum for experts, practitioners, and professionals to come together and convene and exchange their valuable insights and expertise. I am Momina Zegum, Secretary Motoring for the Law Students Council and your host for today. The topic of today's webinar is Fundamentals of Mock Trial. Describing this topic as an exceedingly significant and pivotal subject would not be an exaggeration. So, for this purpose, the Law Students Council has taken the liberty of inviting a very special guest speaker today, Mr. Mia Bazaf Shehbaz. Ladies and gentlemen, I am honored to introduce our esteemed guest speaker for today's webinar before I commence. Our guest speaker has left an indelible mark on the legal community and has played a pivotal role in revolutionizing perspectives. Mr. Mia Bazaf Shehbaz is an associate at Saqlain and Hussain Advocates and Corporate Counsels. He holds a Bachelor of Laws degree from University of Central Punjab, Lahore. Mr. Shehbaz's legal acumen is exemplary, and he has practical experience in various aspects of law, including legal research, practical advocacy skills, and law mooting. He has garnered significant recognition for his exceptional performance in law moot competitions. Mr. Shehbaz has also participated in many notable national and international moot court competitions. Furthermore, he has adjudicated multiple mock trial and moot court competitions, including JESUP Pakistan National Rounds. Mr. Shehbaz has a profound inclination towards law mooting and mock trial competitions and always endeavors to guide and support aspiring mooters. In today's session, Mr. Mia Bazaf Shehbaz will share his insights and experiences, providing invaluable guidance to law students who are interested in the intricate world of law mooting and mock trial competitions. Sir, we are extremely honored to have you here with us today, and it is our absolute privilege to have this opportunity to learn from you. Prior to commencing our discussion, sir, is there anything that you would like to share with the audience? No, before we formally begin, I would just like to thanks the forum, the Law Students Council was given this opportunity to the students who are actually looking forward towards the mock trial competitions. Indeed, it's a new addition to the legal realm. I mean, other than the mooting, ये चीज़ काफ़ी बेहतर हो रही है and it's just wonderful that how such forums are trying their best to play their part in this game. Thank you, sir. So, moving on, ladies and gentlemen, before we formally begin this session, I would like to give a very brief overview of what you can expect from this discussion. We shall go through the structure of a mock trial, how it is conducted, and what is the importance of participating in a mock trial for a law student. Towards the end, the audience shall also have the opportunity to ask questions in the chat, which shall be addressed in order to make the session more interactive. Sir, so I want to begin by asking you to outline the typical structure or format of a mock trial event. All right, so we'll begin with that. देखिए, जिस तरह से एक ट्रायल आप एक लॉ स्टूडेंट के जहन में एक ट्रायल आता है कि हाउ डज अ ट्रायल एक्चुअली गोज वेदर इट इज अ सिविल ट्रायल और अ क्रिमिनल ट्रायल, तो उसमें आता है कि बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो एक पहले सफ़े से मामला चलेगा और इंक्लूडिंग जो सारे के सारे ट्रायल विटनेसेस की टेस्टिमनीज आएंगी, फिर इवेंचुअली उसके ऊपर इंक्लूडिंग आर्गूमेंट्स होंगे और फाइनली एक जजमेंट आएगी। तो उसी तरह से मॉक ट्रायल कंपटीशन को हम बेसिकली 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये हो सकता है द ओपनिंग स्टेटमेंट में जो दोनों पार्टीज की जो अटर्नीज हैं, वो लॉयर्स हैं, वो आके प्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज देयर केस। इफ इट्स अ सिविल ट्रायल तो फिर वहां पे आके पहले बताएंगे कि उनका मुद्दा क्या है, क्या उनका जो है वो मेन पॉइंट है जो कि कोर्ट के सामने वो प्रेजेंट करेंगे, और अगर वो डिफेंडेंट है तो फिर वो आके उसको रिबट करेंगे कि कौन सी वाली बात जो है वो फर्दर अपनी टेस्टिमनी से प्रूव करेंगे या बताएंगे कि ये दुरुस्त है या नहीं है। फिर आता है दूसरा हिस्सा, दैट इज द टेस्टिमनीज, जिसको हम एविडेंस कह सकते हैं, एविडेंस इन द ट्रायल। अब एविडेंस के अंदर मॉक ट्रायल में दोनों पार्टीज को अपने जो विटनेसेस हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए जो एक मौका फराहम किया जाता है।
अब उस एक विटनेस को, जो कि लेट्स से कि प्लेंटिव साइड, या अगर हम क्रिमिनल ट्रायल की बात कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन साइड से जो एक विटनेस प्रेजेंट हो रहा है, उसको दो अटर्नीज जो हैं वो दो मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चनिंग करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द एग्जामिनेशन इन चीफ है, जिसको हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ से जो अपोजिट काउंसिल है वो आके उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। यानी कि हर विटनेस जो दोनों साइड से प्रेजेंट किया जाएगा, उसको जो साइड प्रेजेंट करेगी, उनका जो अटर्नी है वो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेगा, और दूसरी साइड का अटर्नी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। और इस तरह से टेस्टिमनीज का जो एक पूरा सेगमेंट है ये काफी तवील हो जाता है, ये चलेगा। और फिर वहां पे दोनों की टेस्टिमनीज, जब सारे विटनेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, उनकी टेस्टिमनीज नोट हो जाएंगी, देन द एविडेंस का जो सेगमेंट है वो कंक्लूड हो जाएगा। अब इसके एंड पे जो आखिरी बात आती है वो आती है अटर्नीज की क्लोजिंग स्टेटमेंट। इसके दरमियान में एक ब्रेक दी जाएगी। उस ब्रेक के अंदर जो दोनों पार्टीज होती हैं उनको अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट में एविडेंस के अंदर जो जो बात सामने आई है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में एक पॉइंट प्रूव कर दिया है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अनरिपीटेड रहा है, तो उसको वो एम्फसाइज करेंगे कि ये दिस पॉइंट स्टैंड्स प्रूव्ड, एंड देन देयर हैव द चांस कि वो उस पॉइंट को अपने किसी लीगल बैकिंग से, किसी लीगल केस लॉ से, या किसी अथॉरिटी से, या किसी एग्जैक्ट स्टैट्यूट से उसको रेफर कर पाएंगे और अपना पूरा आर्गुमेंट बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट, और उस तरह से जो है वो अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइनलाइज करेंगे। सिमिलरली दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा कि वो अपनी जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट दें, जिसमें वो अपने एविडेंस को जो है वो सारा का सारा समझ लें कि एक असिमिलेट करेंगे, उसको ब्रीफली दोबारा से रिव्यू करवाएंगे कोर्ट के सामने, एंड देन इवेंचुअली वो उसको अपना क्लोज करेंगे कि व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो देन दिस थिंग इज लेफ्ट टू द जजेस दैट हाउ वुड दे डिसाइड अपॉन द मैटर। सो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मॉक ट्रायल। Very well explained, sir. So, moving to the next question, what are the primary responsibilities of attorneys and then the witnesses in the mock trial? ऑलराइट, अच्छा, सबसे पहले तो इसमें देखें, हम ये समझते हैं कि अब चूंकि हम मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब चलेंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड कि हम उस तरह से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, उसमें ये है कि एक टीम के अंदर आमतौर पर जो हमने अभी देखा है, जो रिसेंट मॉक ट्रायल्स हुए हैं, उसमें दो विटनेसेस और दो अटर्नीज होते हैं एक साइड टीम में। फॉर इंस्टेंस, योर प्रोसिक्यूशन टीम, तो आपके दो प्रोसिक्यूटर्स होंगे, दो आपके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होंगे, और इसी तरह से जो अपोजिंग टीम है उसके अंदर भी दो डिफेंस अटर्नीज होंगे और दो डिफेंस के विटनेसेस होंगे। अब एज ए डिफेंस प्रोसिक्यूशन आपका रोल ये है कि आपने एक तो ये सबसे पहले अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट, और डिफेंस की तरफ से भी एक बहुत ही कंपेलिंग तैयार करनी है, जिससे एक ओवरव्यू पूरे के पूरे जो ट्रायल का है, जो कि आगे होने वाला है, उसका एक ओवरव्यू आएगा। और जो विटनेस, और जो उसके बाद जो लेट्स से कि आपके एक प्रोसिक्यूशन अटर्नी जो है उन्होंने लेट्स से ओपनिंग स्टेटमेंट दी है, तो दूसरे प्रोसिक्यूशन अटर्नी को जो है मौका दिया जाना चाहिए कि वो क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट करें, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में एक डिस्पैरिटी किस्म की शो ना हो, समझ लगे कि दोनों प्रोपोर्शनेटली सबको इक्वल चांस ऑफ प्रेजेंटेशन दिया गया। अब जो विटनेसेस हैं उनका डुअल रोल है। पहला उनका रोल ये है कि जब उनसे उनके प्रोसिक्यूशन अटर्नी, लेट्स से इफ इट्स अ प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड द प्रोसिक्यूशन अटर्नी इज आस्किंग द क्वेश्चंस व्हिच इज द एग्जामिनेशन इन चीफ, तो जो वो क्वेश्चन दे रहे हैं उन्होंने एज इन मच डिटेल उसको जो है वो आंसर करना है, और फिर उसकी बेस के ऊपर उन्होंने कायम रहना है। बिकॉज अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर डिफेंस अटर्नी आके प्रोसिक्यूशन विटनेस से क्वेश्चनिंग करेंगे, so what he will try to do or what she will try to do is to create some sort of contradiction between the stances, कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस ने जो अपने एग्जामिनेशन चीफ में जो बात कही होगी, उसमें किसी ना किसी तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करने की कोशिश की जाती है, ताकि उसकी जो बात है उसको रिबट किया जा सके, जो उसने पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की है उसको नलिफाई किया जा सके। और इस तरह से जो अटर्नी, जो जो विटनेस है, उनका रोल क्या हो गया, उनका एक तरफ से रोल ये हो गया कि उन्होंने अपना जो पॉइंट है उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने, और सेकंडली ये कि उस पॉइंट पे कायम भी रहने। ये ना हो कि थोड़े से सवालों के बाद वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन के जो अटर्नी है उनसे एग्री करना शुरू हो जाए कि जी सर आप दुरुस्त कह रहे हैं और जो मैंने पहले बात की थी वो गलत कही थी। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली गोज। अब एज अ प्रोसिक्यूशन अटर्नी जो है वो आपके डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहली ये कि आपने डायरेक्टली कोर्ट को असिस्ट करना है, और सेकंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आप एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहे होंगे, यू हैव टू आस्क सच क्वेश्चंस कि आपका विटनेस उसको डिटेल में आंसर कर सके।
और जब आप किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे होंगे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो कोई ऐसा पाइवटल पॉइंट जो है, वो कोई ऐसा फैक्ट जो है वो उसको प्रूव कर गए, तो आपने उसको डिस्प्रूव करना है वहां पे. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Very well articulated, sir. Sir, how do you recommend handling objections during a mock trial? And what are some of the common types of objections that the prosecution side or the defense attorneys can raise during trial? और अच्छा, देखिए सबसे इसमें जो आसान जो हमें ऑब्जेक्शन है उसके हम एग्जांपल लेके स्टार्ट करेंगे. लीडिंग क्वेश्चन. अब देखिए लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा हो कि उसका जो जवाब है वो सवाल के अंदर ही हो. अब लीडिंग क्वेश्चन का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि आप 5 दिसंबर की शब 7:35 पर कहाँ थे, तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है. इट इज अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आमतौर पे जो प्रोसिक्यूशन के, लेट्स से प्रोसिक्यूशन के अटर्नी और प्रोसिक्यूशन का ही विटनेस है. अब प्रोसिक्यूशन अपना एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहा है कि ये आई विटनेस है जिसने कत्ल होते देखे. तो पहला सवाल क्या होगा, वो यही होगा कि क्या आप सीन ऑफ एविडेंस के, सीन ऑफ अकरेंस पे थे जहां पे क्राइम कमिट हुआ है. तो उसमें क्या होगा कि वो पहला सवाल ये पूछेगा, और आपको पता है कि जो क्राइम कमिट हुआ है वो 7:35 पे हुआ है 5 दिसंबर की शाम को. तो पहला सवाल ये होगा कि आप 5 दिसंबर 2023 शाम 7:35 पर कहाँ थे. तो वो बताएगा लेट्स से कि मैं था जिना पार्क में, जिना हाउस में था फॉर इंस्टेंस. अगर वो ये कहता है कि मैं जिना हाउस में था, तो ये उसने एक आंसर कर दिया. लेकिन अगर जो है प्रोसिक्यूशन अटर्नी का सवाल पूछने का अंदाज ये होता है कि क्या 7:35 के ऊपर आप जिना हाउस में थे, तो इसका जवाब क्या आएगा, या आएगा हाँ या नहीं. क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वहां पर एक क्राइम को प्रूव करने आएगा, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि जी हाँ. अब ये हो गया लीडिंग क्वेश्चन. द ऑपोजिट पार्टी हैज द राइट कि वो लीडिंग क्वेश्चन को जो है ऑब्जेक्ट कर सके, बिकॉज लीडिंग क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ में अलाउड नहीं है, जबकि यही लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड है. अब इसको हम एक दूसरे रुख से देखते हैं कि यही साहब हैं जिन्होंने अपने लीडिंग क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन इन चीफ में अपना स्टांस ये बताया है कि 7:35 के ऊपर वो लेट से जिना हाउस में थे, जो कि बिलफर्स कैंट लाहौर में वाक़ है. अब जब उनके उन्हीं का जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो आके अपोजिंग अटर्नी जो है वो कहते हैं कि क्या आप 7:50 पर लेट्स से कि कोई दूर दराज का इलाका, क्या आप बहरिया टाउन लाहौर में थे. अब इन दोनों इलाकों के दरमियान जो फासला है तकरीबन 50 से 60 से 70 मिनट का, काफी लंबा फासला, बीच में ट्रैफिक काफी होती है. अब सवाल उनसे सिंपल ये आ गया कि क्या आप उस वक्त इतने भी थे 7:50 पे. अब ये एक लीडिंग क्वेश्चन, जब आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है तो इस जगह से ये अलाउड है, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा. तो इसलिए फिर क्या होगा कि वो दूसरी पार्टी कहेगी कि लेट्स से कि वो कहते हैं कि जी मैं बहरिया टाउन पहुंच गया था, तो यहां पर अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बताएंगे कि सर इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि आप कैसे जो है वो 50 मिनट का फासला आप जो है वो 15 मिनट में तय कर लें. सो दिस इज हाउ यू रिलेट. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ऑब्जेक्शन कैसा हो सकता है. लीडिंग क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन दूसरी पार्टी से आएगा अगर वो पूछा गया है एग्जामिनेशन इन चीफ में. लेकिन अगर वही सवाल जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता. हैंडल कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. एक विटनेस को चाहिए कि जब वो एक अपोजिंग अटर्नी के किसी सवाल का जवाब दे रहा है, तो उसको सिर्फ ये याद रखना है कि उसने अपने पहले बयान में क्या कहा हुआ है. बिकॉज हमेशा से ऐसा होता है कि पहले जो है आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड की जाएगी, और उसके बाद उस एग्जामिनेशन इन चीफ की बेसिस पे आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी. So you have to remember what you have said earlier, because any wordings or any phrase or any sentence that you say which goes in contradiction with what you have said earlier, जो पहली वाली बात है वो विशिएट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उसको फिर भी यकीन नहीं करेगा. कोर्ट इज बाउंड कि वो उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दे कि वो बात सच ही नहीं. So this is how you deal with it. I guess I have answered this question. Yes, sir. Thank you for the explanation. Very well explained. So now coming to the witnesses, they play a very important role in trial. How does one effectively portray a witness's role in terms of the preparation and then their delivery during trial? अच्छा देखिए, जो हमने सबसे पहले अभी तक जो एक्सपीरियंस से चीज सीखी है, विटनेसेस के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स दिए गए हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको जो पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स है, आपको उसको अच्छे से समझना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका रोल क्या है.
लेट्स से कि आप एक ओकुलर विटनेस है, ठीक है, किसी भी इंसिडेंट की आप आई विटनेस है मिसाल के तौर पे, आपको पता होना चाहिए कि अब उस सीन के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ चल रहा होगा। मिसाल के तौर पर किसी को गोली बची है और आपसे सवाल ही पूछ लिया जाता है, क्या गोली लगने के बाद आपने खून बहते देखा? और आप अगर इसका जवाब देते हैं नहीं, या फिर जो है अगर आप इसका जवाब देते हैं कि पता नहीं, तो जो आपकी लॉजिकल माइंड है, जो कॉमन सेंस है, वो इस चीज को मानती नहीं है कि अगर एक इंसान को गोली बची है सो इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पे खून तो निकलेगा। और अगर जो है वो कहे कि नहीं मैंने देखा नहीं, तो इसका मतलब है कि इज नॉट समथिंग। सो व्हाट अ विटनेस हैज टू डू, बिकॉज देखिए ये मॉक ट्रायल कंपटीशन है, इट इज नॉट एक्चुअल ट्रायल के जहां पर आप विटनेस में जा रही हैं। यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट विटनेस, कि जब एक विटनेस के सामने सारा कुछ हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। आपके सामने अगर एक कत्ल होते हैं खुदा न खास्ता, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर किस किस तरह की चीजें जो है वो इंसिडेंटल हो रही होती हैं। फायर, लेट्स से कोई फायरिंग से कत्ल हुए, फायर चल रहे हैं, बंदूक है, लेट्स से कोई ऑटोमेटिक वेपन है, ऑटोमेटिक वेपन है, उसकी गोली चलेगी, बंदूक में से शरें निकलेंगी, ठीक है, गोलियां निकलेंगी, उसकी एक स्पार्क निकलेगा, किसी शख्स को बजेगा, खून निकलेगा, भगदड़ मचेगी, लोग भागेंगे, कुछ लोग छुपेंगे, डिपेंडिंग के टारगेट कौन था, क्या एक सिंपल शॉवर था फायर का या एग्जैक्टली किसी को टारगेट किया गया। सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन द विटनेसेस माइंड। अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और आप किसी के आई विटनेस बनते हैं, सो यू हैव टू नो कि एग्जैक्टली एक जब सामने किसी के सामने आंखों के सामने कोई कत्ल होता है तो क्या कुछ हो रहा होता है, व्हाट आर द फीलिंग्स, व्हाट आर द सराउंडिंग्स, लोग अपने बारे में क्या सोच रहे होते हैं, सराउंडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके अलावा और कितने लोग थे। सो यू हैव टू सी कि आपने एग्जैक्टली क्या आंसर करना है। इफ यू आर गोइंग अराउंड एंड यू आर नॉट एक्चुअली टेलिंग देम द राइट आंसर, इसका मतलब है कि आप अच्छी विटनेस नहीं है। सो अगेन जस्ट समिंग इट अप, be very concise and clear about the facts. Don't try to be over smart and try to oversay things, because witness ने जो छोटी बात कह दी है ना, वो ज्यादा काम की है, वो लंबी बात कहेगा तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन निकल आएगी। So this is how you can be in during your examination in chief. You can be very concise, very brief, but you must be clearing the point which you are there to clear. ये बहुत जरूरी है। Thank you, sir, for the explanation, sir. Now, I would like to know, okay, in your opinion, what are some of the common challenges that participants usually face when they, take part in the mock trials, and how would you suggest that they overcome these challenges? अच्छा देखिए, उसपे अब मिसाइल दो तरह से हमने देखे हैं कुछ रिसेंट टाइम के अंदर। पहला मिसाइल अगर हम अटर्नीज की बात करें, तो अटर्नीज उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर क्लियर नहीं होते हैं, बिकॉज जब आप किसी भी चीज का ट्रायल कर रहे हैं, लेट्स से अगर मर्डर ट्रायल है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके एंसिलरी क्या क्या मैटर्स हैं, इसकी एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है, उसके केस लॉस पढ़ें आप। तो वो उसमें रिसर्च की कमी हमने देखी है, तो रिसर्च की कमी सिंपली आप केस लॉस पढ़ना शुरू करें। अगर उस जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर आपका मॉक ट्रायल हो रहा है, आप केस लॉस पढ़ेंगे, उसमें देखें जो स्टांस है ना, वो दोनों पार्टीज का कोर्ट्स ने बड़े क्लियरली लिखा होता है कि एक पार्टी का क्या स्टांस था, दूसरी पार्टी का क्या स्टांस था। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करते जाएंगे, वो आपको सिचुएशंस क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि एक कोर्ट के अंदर जब एक मैटर जाता है, तो किस किस तरह के इंसिडेंटल मैटर्स जो है वो कोर्ट के सामने डिस्कस किए जाते हैं। एंड दैट पॉइंट विल हेल्प द अटर्नीज टू बेटर प्रिपेयर देमसेल्व्स। Whereas the same goes for witnesses. अटर्नीज का बेसिकली जो यहाँ पे जो एक मॉक ट्रायल में जिम्मेदारी है, वो विटनेसेस से थोड़ी ज्यादा इसलिए है बिकॉज असल जिंदगी की तरह उन्होंने ही अपने विटनेसेस को जो है वो तैयार करना है, उन्होंने ही बताना है कि उनके विटनेसेस को क्या आंसर एग्जामिनेशन इन चीफ में देना है, ताकि उस पॉइंट के ऊपर रिलाई करते हुए आप जो है उसको अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में फाइनली प्रूफ करेंगे कोर्ट के सामने कि हमने ये बात देखिए थ्रू एविडेंस जो है प्रूफ कर दी है। सो ये एक चैलेंज आता है कि चूंकि पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स जो दिए जाते हैं, या जो एग्जामिनेशन इन चीफ या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उस पर्टिकुलर केस के वाले से प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर बेहतर तौर पे तैयारी नहीं होती है। उसका बेहतर तरीका यही है कि आप उस फाइल को बार बार पढ़ें और जो रेलिवेंट फैक्ट्स उसमें लिखे हुए हैं उसके हवाले से रिसर्च करें कि क्या इससे मुतालिक कुछ और केसेस हुए, फिर आप जो है समझ पाएंगे कि किस तरह से वो मामला चलता है। So, moving further, what, in your opinion, how can attorneys prepare impactful opening statements? ऑलराइट, ओपनिंग स्टेटमेंट देखें, अब उसमें हमें एक एग्जांपल पे जाना पड़ेगा। लेट्स से हम अब चूंकि हम मर्डर ही डिस्कस कर रहे हैं, काफी देर से मर्डर पे ही रहते हैं। देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा कि जनाब एक्यूज्ड कौन है, एक्यूज्ड का क्या कोई जो विक्टिम है उससे कोई रिलेशन था,
आप ये शुरू में ही बताएंगे कि जनाब इनका रिलेशन ऐसे था, कोई वजह अनाथ जिसको हम उर्दू में जगह जगह आपने देखा होगा, वजह अनाथ क्या थी जी, ठीक है, आपस में उनका हॉस्टिलिटी क्या थी, जी आप शुरू में ही बताएंगे और उसको फिर आप प्रूफ करेंगे एविडेंस से। ओपनिंग स्टेटमेंट इज जस्ट सिंपली लाइक कि आप आगे क्या करने वाले हैं, और आगे आप क्या करने वाले हैं जब आपकी अगली चीज तैयार होगी तभी आप बता पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक स्टार्ट करूं और मुझे पता ना हो कि मैंने 4 लफ्जों के बाद क्या कहना है। यू हैव टू टेल कि आप किस किस विटनेस को इस कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो विटनेस किस हवाले से गवाही देगा, उस विटनेस का इस केस से ताल्लुक क्या है, और फिर वो विटनेस जो है वो इवेंचुअली क्या पॉइंट प्रूव करेगा, एंड देन यू विल एक्सप्लेन टू द कोर्ट कि थ्रू द टेस्टिमनी आई विल जस्टिफाई बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट कि जनाब ये वाला जो ऑफेंस लेट्स से इसके ऊपर जो 302 का ऑफेंस हमने चार्ज किए वो मुकम्मल होते हैं, उसके एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। और जबकि यही चीज जो है वो डिफेंस के जो अटर्नी है वो आकर बताएंगे कि जनाब ये जो केस है ये बेसलेस है, इतना एविडेंस ही नहीं है। जो आप ये बताएंगे कि जो प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस प्रोड्यूस करने का कहा है, हम ये साबित करेंगे कि वो विटनेसेस लेट्स से कि वो सीन ऑफ अकरेंस पे थे ही नहीं, और फिर हम साथ में वो वाले विटनेस जो है लेट्स से प्ली ऑफ एलिबाई अगर किसी केस में ली गई है तो उसमें आके वो अपने विटनेसेस को प्रिपेयर करके बताएंगे कि जनाब हम आपको बताएंगे कि हमने विटनेस मौजूद है कि हमारा जो एक्यूज्ड है जिसकी हम तरफ से अटर्नी वो पेश हो रहे हैं वो तो कभी वहां पर था ही नहीं, वो उस शहर में क्या वो तो कभी मुल्क में भी नहीं था। इस तरह की बातें हैं, इस तरह का जो स्टांस है वो लिया जाता है आमतौर पर डिफेंस की साइड से। सो व्हाट यू हैव टू गिव इज टू गिव द कोर्ट एन ओवरव्यू। देखिए मॉक ट्रायल कंपटीशन मैक्सिमम जो हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल है किए हैं वो 1-1 घंटे के होते हैं, बिकॉज 30-30 मिनट्स की दोनों साइड्स की जो है उसमें हमें उसको एलोकेट करना पड़ता है। अब 1 घंटे के कंपटीशन में ना आपने वो शुरू के 5-5 मिनट में दोनों अटर्नीज ने बड़ा क्लियरली बता देना है कि जनाब हम अगले 50 मिनट में जो है हम दोनों क्या करने वाले हैं, अपने जो 25-25 मिनट मिलेंगे हम उसमें क्या पॉइंट करेंगे, वेरी ब्रीफली, नॉट इन डिटेल, बट यू हैव टू टेल द जज ताकि जज को पता हो कि अच्छा, बिकॉज जज इज योर यू नो द स्कोरिंग जज ना, ये एडजुडिकेटर जो है इन्होंने ट्रायल का फैसला थोड़ा ना देना है, इन्होंने आपकी परफॉर्मेंस का फैसला देना है। वो जो एडजुडिकेटर है आपका उसको वो साथ ही नोट करते हैं कि अच्छा इसने कहा है कि मैं ये प्रूव करूंगा, ये प्रूव करूंगा, ये प्रूव करूंगा, और इवेंचुअली क्लोजिंग के बाद जज सिर्फ जो चेक कर रहे होते हैं ना वो चेक करते हैं कि इन्होंने जनाब ने ओपनिंग में कहा था मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, क्या किया या नहीं किया। अगर किया तो इसका मतलब है कि इट्स डन, द जॉब इज डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अगर नहीं किया तो दैट मींस दैट यू हैव नॉट डन द जॉब वेरी राइट। So this is how you deal with it. Thank you, sir. Your explanation was extremely informative. So, moving further, what role does cross examination play in a mock trial, and what strategies can be employed for effective questioning? हाँ, चलिए इसमें जो है ना थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। पहली चीज हम आते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो विटनेस को कैसे रहना चाहिए। पहली बात हो चुकी है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हम बात करते हैं अटर्नी के पर्सपेक्टिव से कि अटर्नी ने उसमें क्या कर रहा है। अटर्नी ने बेसिकली अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता दिया है कि वो इस केस में क्या प्रूव करने वाले हैं। अगर लेट्स से कि कोई शख्स, कोई विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस ये क्लेम कर रहा है कि ही इज एन आई विटनेस, तो आपको ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप उसको ये साबित कर दें कि दिस पर्सन इज नॉट एन आई विटनेस। मिसाल मैंने आपको इसके पहले दी है, आपको यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन योर माइंड, बिकॉज वकीलों को या इवन इन द मॉक ट्रायल कोई लिमिट नहीं है कि आप जो है किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। स्पेशली क्रॉस एग्जामिनेशन में तो जो आपके ऊपर लीडिंग क्वेश्चन वाली जो है वो लगती है ऑब्जेक्शन, वो भी नहीं होती है, तो आप खुल के सवाल पूछें। मिसाल के तौर पे आप उसको चाहे उस तरफ लेकर जाएं कि यार किसी कोई एक पॉइंट तो मिले जिसकी वजह से मैं इसके पहले पॉइंट को रिबट कर सकूं। आमतौर पे ये हमने जो देखा है सीनियर वकला को भी मतलब कि शहादतें वगैरह करवाते कोर्स में भी वो 8 सवाल पूछते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता केस से, और उससे वो बेसिकली जवाब देना चाह रहे होते हैं 9th क्वेश्चन का, कि 9th क्वेश्चन में जो भी वो उस फिटनेस का आंसर होता है वो अपनी रेलिवेंस क्रिएट करते हैं, और 8 क्वेश्चन थे कि जनाब इसने इसका ये जवाब दिया, इसने ये जवाब दिया। जब ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो फिर जो बात उसने पहले कही है वो सच हो ही नहीं सकती। दिस इज हाउ यू क्रिएट इट। फॉर इंस्टेंस मैंने सादी जुबान में आपको बताया कि एक बंदे ने पहले कह दिया कि लेट्स से कि 7:35 पे कैंट में था और 7:50 पे जो है वो कह रहा है कि मैं बहरिया टाउन था, तो अनलेस अंटिल वो अपने रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन में ये नहीं कहता कि मैं हेलीकॉप्टर के थ्रू गया था, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो जा पाए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सरसाइज योर माइंड। अगर आपको उसके फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट शीट्स तो मॉक ट्रायल में दोनों को सेम ही मिलती है,
अगर आपको उस केस के अच्छे तरीके से फैक्ट्स पता है और आप उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट से सुनी है, तो हो सकता है कि आप उसकी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन बना पाए, आपको खुद से क्रिएट भी ना करनी पड़े अगर वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ। और ऐसा ही होता है, सारी टीम्स इक्वली प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं। It is a chance for the better teams. I was truly amazed by one of the participants. I have forgotten her name now, but she was extraordinary. अपने पिछले कंपटीशन से आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि she asked very simple questions from the witness in her cross examination, and me as an adjudicator I was like okay fine, कोई बहुत अच्छी cross examination तो ये नहीं कर रही है, मतलब I was with you, it's an average, ठीक है fine। बट सडनली उन्होंने जब सारी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट की तो उसके बाद उन्होंने हमसे इजाजत ली कि आई वांट टू प्रोड्यूस सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू। उनको कुछ केस फाइल जो मिली थी, उन्होंने वो केस फाइल खोली, मुझे केस फाइल के ऊपर वो लेकर गए और जाकर कहा कि सर आप काइंडली वो लाइन पढ़िए। हमने वो लाइन पढ़ी, फिर वो दोबारा में वापस लेकर आई कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ में जो ये वाली लाइन जो उनके विटनेस ने ये पढ़ी है, ये दोनों एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लिहाजा जो ये वाली बात है इनकी जो है दुरुस्त नहीं हो सकती। एंड वी वर ट्रूली अमेज्ड, वंडरफुल। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर डिस्टिंक्शन। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि दूसरी पार्टी ने क्या कहा है और क्या बात कहने में मिस कर गई है, तो उसके अंदर अगर आप गैप क्रिएट कर सके देन यू हैव शैटर्ड द विटनेस, दैट्स योर जॉब। Very well articulated, sir. So, continuing onwards, coming to the preparation of a mock trial, how does one effectively, prepare for a mock trial as an attorney or as a witness, and what would the process of preparation typically look like? अच्छा, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, ये देखें इसमें जो लॉ स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, हमने रूटीन में देखा है कि टाइम नहीं देते, अदरवाइज बिजी होते हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, एटसेट्रा, कंपटीशन चल पे है एंड दे आर नॉट प्रिपेयरिंग इट। होता क्या इवेंचुअली जो हमने देखा कि अटर्नीज जो हैं वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, अटर्नीज जो हैं वो अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट पहले से तैयार कर रहे हैं, जो विटनेसेस हैं वो उन्होंने एक तो मोटी बातें पूछ ली हुई हैं और उसके आगे जो है वो कुछ पढ़ ही नहीं रही हैं, देख ही नहीं रही हैं, अपने माइंड पर एक्सरसाइज ही नहीं कर रही हैं। तो मैंने जो इसकी हमेशा जो एक अच्छी टेक्निक बताई है मुझे है कि एक टीम में लेट से कि आमतौर पे 4 लोग हैं ना, 2 प्रोसिक्यूशन है, लेट से कि 2 अटर्नीज हैं और 2 विटनेसेस हैं। और चूंकि कंपटीशन में आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट जो भी आप करवाएंगे, लेकिन आमतौर पे हम ये करते ये हैं कि दोनों साइड से जो है वो उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर एक दफा एक टीम जो है 4 मेंबर्स की वो प्रोसिक्यूशन साइड से प्ले कर रही है, तो एक डिफरेंट राउंड में वो डिफेंस साइड से प्ले करेंगे। अब जो डिफेंस साइड से आपका दिमाग आपने चलाना है एज अ अटर्नी और एज अ विटनेस, वो सेम जो है वो आपका प्रोसिक्यूशन साइड से भी होना चाहिए। तो हम उसमें रिकमेंड ये करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग तो चले, क्लोजिंग तो तैयार करने की जरूरत सिर्फ उस हद तक है कि आपको लॉ पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट से रेलेवेंट कोई केस लॉज आपकी पहुंच में है तो आपको वो पता होनी चाहिए, उसकी जजमेंट पता होनी चाहिए, यहाँ तक है। लेकिन असल जो एविडेंस आपके केस में क्रिएट होना है, जिसने सेट ऑफ फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर देना है, वो है आपके विटनेसेस। विटनेसेस को वकील ने असल में तैयार करवाना और उसके ऊपर जो है सबसे कम जो है तवज्जो दी जाती है। इससे फिर जो है मॉक ट्रायल कभी भी अच्छा परफॉर्म ही नहीं हो पाता। ना सिर्फ ये कि आपकी अपनी टीम के लिए, बल्कि ये जो एडजुडिकेटर होते हैं वो बहुत ही बोर्ड फील कर रहे होते हैं, दे आर वेरी लेथार्जिक। वो कहते हैं कि यार क्या बात, मजे का नहीं आया, लीस्ट मार्क्स दो, 10 मार्क्स में 5 दो, 5 मार्क्स। सो वो अच्छा एक टेस्ट नहीं जाता। सो व्हाट यू कैन डू, द मोस्ट इफेक्टिव इज कि आप अपनी ही टीम को क्रॉस एग्जामिन करें। आपके जो विटनेस है, आपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर ली, आप जो दूसरा अटर्नी है किसी दूसरे इशू और फैक्ट के ऊपर जो है उससे क्रॉस एग्जामिन करें। अब होता ये कि एक बंदे के लिए एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों साइडों से इतना दिमाग चलाना अगर चलाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तैयारी अच्छी नहीं होगी। सो मैं उसमें जो करता हूँ रिकमेंड वो ये है कि हमने डिसाइड ये किया था, साइड पे नोट कर लिया, हमने डिसाइड ये किया था कि 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक जो है 2 हो गए आपके अटर्नीज, 2 हो गए आपके विटनेसेस, ठीक है। एक जो है अटर्नी वो ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा है और एक अटर्नी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा है, और 2 विटनेसेस जो हैं वो एक किसी एक पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं और एक किसी एक पॉइंट को। हम चाहते ये हैं, जो हम उसमें रिकमेंड ये करते हैं वो ये कि लेट्स से जो ओपनिंग स्टेटमेंट जो अटर्नी दे रही हैं वो करें सिर्फ विटनेस 1 की एग्जामिनेशन इन चीफ, और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट जो अटर्नी दे रही हैं वो विटनेस 2 की एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट करें। और फिर जो ओपनिंग स्टेटमेंट के जो अटर्नी जो आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं अटर्नी, वो विटनेस 2 की जिन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ जो है
वो प्रोसिक्यूशन अटर्नी 2 ने की है ना, अब उसको वो स्विच कर ली, यानी कि जो अटर्नी 1 है वो विटनेस 2 की डायरेक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करे। आप अपने ही टीममेट जो है वो एक दूसरे से जब काउंटर क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली क्या लाइन ऑफ एक्शन लें तो वो अनरिपीटेड जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करेंगे और ये सोच लेंगे कि देखिए हमें तो आज के दिन में पता ही नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चनिंग आपकी अपोजिंग टीम आपसे करेगी तो आप तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, आप उसको जो है वो आंसर नहीं कर पाएंगे। So this is how your own teammates need to be very critical. And this exercise will only help, not only help the witness, but also the team as a whole in this sense कि देखिए जो आपने प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरफ से प्रोसिक्यूशन तरफ आपने जो पूरा कंपटीशन की तैयारी की है, जब आप उसी को रेप्लिकेट करेंगे डिफेंस की तरफ से तो वो भी तो अच्छा हो जाएगा ना। So this is how these four people have to be, you know, very much in their मतलब इनको फिजिकली आपस में आसपास रहना चाहिए। आमतौर पे जो पिछले मॉक ट्रायल्स हुए हैं ऑनलाइन चले गए थे, पार्टिसिपेंट्स वर नॉट एबल टू इवन मीट इन पर्सन, तैयारी नहीं की थी। सो वो जो चार लोग हैं ना उनको अपने आप को उन पर्टिकुलर तैयारी के दिनों में बहुत क्लोजली कनेक्शन रहने, 2-3 घंटे उसको लगाएं, पढ़ें। ऑपोजिट साइड से जब आप केस तैयार करते हैं ना, ज्यादा हम जब अपनी लॉ फर्म में बैठे होते हैं तो केस हम क्लाइंट के हक में तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद होता असल में क्या है कि हम फाइल करने से पहले सिर्फ अपोजिंग अटर्नी के तौर पे तैयार कर रहे होते हैं। लेट्स से कि जिस अटर्नी ने प्लीड करने केस वो उसी तरह से आते हैं जिस तरह से हमने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मैं या कोई जूनियर एसोसिएट्स जो हमारे साथ हैं हम उसके समझ लें कि एज एन अपोजिंग काउंसिल आते हैं और हम उसमें से नुक्ते निकालते हैं कि सर ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। एंड दिस इज हाउ वी रिफाइन आवर लाइन। You carry on the same activity and inshallah you will be very well in about it inshallah. Inshallah, sir. So moving forward, are there any specific ethical considerations or guidelines, that participants should be mindful of when a mock trial is being conducted? दो चीजें जो हमने ऑब्जर्व की हैं, no scandalous questions please, don't try to shatter the testimony of a witness based upon, by raising certain scandalous questions, not at all, not at all. अब मॉक ट्रायल जज उसको इतने बुरे तरीके से देखते हैं ना कि वो आपकी अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं, और जब एक मॉक ट्रायल जज जो है वो एक पार्टिसिपेंट की अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो डाउटफुल हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या बेहतर स्कोर कर सकते हैं? मैं तो कभी भी ना दूं। ठीक है, सो इसलिए कोई भी और नहीं देगा। इट इज सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी। आप किसी को अगर शेटर करना चाहते हैं तो बेसिस ऑफ फैक्ट्स कीजिए, अदरवाइज नो। दूसरी बात क्या होती है जो हमने एक देखा और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने जब लास्ट टाइम किया, हमने उनको फिर बाद में पर्सनली मैंने उनको जो है एक दफा कॉल करके ये बात समझाई कि बेटा ऐसे नहीं करते। होता क्या है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही होती है तो जो अटर्नी होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो कह रहा होता है अच्छा नहीं मैं तो इस तरह इसको इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके ही रहूंगा। अब जो विटनेस है अगर वो अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है तो आप कर नहीं पाते हो। अब होता क्या, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, मतलब वो बात एक बता रहा है और वो उस बात को उसका जवाब नहीं सुन रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं आप उसको छोड़ें, आप उसको छोड़ें। जब भी आप एक मॉक ट्रायल में एक वकील एक विटनेस को बीच में कट करते हैं ना, तो अगर वो उसने कट किसी अच्छी बेसिस पे ना किया हो तो मॉक ट्रायल का जज उसको इतने बुरे तरीके से मार्क करते हैं कि आप सोच, मतलब आई वुड रियली हेट दैट कि आपका जो विटनेस है वो अपना एक पॉइंट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मिडिल ऑफ द सेंटेंस रोक रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज अ बिग नो नो। एथिकली बहुत बुरी बात है कि आप किसी की बात मुकम्मल ना होने दें। देखिए जो आम ट्रायल्स में हो रहा होता है ना, आपने उसको मॉक ट्रायल में प्लीज रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं करनी। मॉक ट्रायल को बहुत सिविलाइज्ड रखना है, आपने दूसरे पार्टिसिपेंट को स्पेस देनी है, उसको अपनी बात मुकम्मल करने देनी है और फिर उसके बाद आप उसमें से पॉइंट निकालने। हाँ, वो बहुत लंबा जा रहा हो तो फिर आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे केस प्रूफ नहीं करना अपना, यू हैव टू विन द कंपटीशन एंड अ जज इज सीइंग एवरीथिंग। वो देख रहा होता है कि विटनेस जो बात कर रहा है सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, कोर्ट का टाइम ज़ाया कर रहा है, भी बात कर रहा है। तो लेट जज डिसाइड दैट एंड इवेंचुअली द बेटर टीम विल बी। I couldn't agree more with you, sir. Sir, how do mock trials actually simulate real courtroom experiences, and what aspects might differ from actual legal proceedings compared to the mock trial? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। देखिए मॉक ट्रायल है तो वैसा ही जैसा असल में ट्रायल होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक ट्रायल आमतौर पे पाकिस्तान में सिविल ट्रायल है तो 3 से 4 साल तो कहीं नहीं गए,
और अगर क्रिमिनल ट्रायल है तो भी 1.5-2 साल तो लग ही जाते हैं, या उससे चलो कम अरसे में भी हो जाते हैं, स्पीडी ट्रायल्स भी हो जाती हैं। तो मॉक ट्रायल जो है आपका पूरे का पूरा ट्रायल फ्रॉम द स्टार्ट टिल द जजमेंट 1 आवर में हो जाते हैं, ऐसा थोड़े ना होते। इसी तरह से आप मौके के ऊपर ही जो है वो अपना जो विटनेसेस है क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। असल ट्रायल में ऐसा नहीं होता। असल ट्रायल में होता ये है कि एक दिन आमतौर पर कभी कभी होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, वकील साहिबान जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड हों या एक्टिव हों तो उनका दिल कर पड़ता है, बहुत शाज़ो नाज़र होता है। ऐसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर सिंपल ये होता है कि आज एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई है तो समझ लें कि 6 महीने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाएगी। तो तब तक जो एग्जामिनेशन इन चीफ जिसने दी होती है उसको याद भी नहीं होता उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्या क्या बोलना था क्या नहीं करना था। वकील साहब कहते नहीं जनाब मैं तो तैयार ही नहीं किया हुआ जी, अगली तारीख पे। होता ये है कि वो जो बेचारा जो क्लाइंट होता है, जो विटनेस होता है, असल में जो विटनेस होता है वो ये बात भूल चुका होता है कि उसने बात क्या कही थी। उसको फिर अगर वकील की जिम्मेदारी होती है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले उसको अपना बयान अच्छे तरीके से याद दिला दे कि तुमने ये बयान दिया हुआ है, ताकि वो अपने उस बयान के मुताबिक ही अगली बातें करे। जब वहां असल ट्रायल में ये होता ही नहीं है, अब बयान अपना जो है वो विटनेस भूल चुका होता है, वकील साहिबान कभी कभी उनको जो है वो याद नहीं दिलाते हैं अगर, तो फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो सारी की सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। जब सारी की सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं तो आपका अच्छा खासा केस भी खराब हो जाता है। जबकि जो मॉक ट्रायल है, जो कि बहुत स्पीडीली जो हम इसको कंडक्ट करते हैं, हमने इसके अंदर कोई डिसीजन थोड़े ना देने, हमारे डिसीजन से कोई खुदा माफ करे कोई किसी को फांसी नहीं हो जानी, ना ही किसी ने बरी हो जाना, उसे सिंपली हमने एडजुडिकेट करना है अपॉन द पॉइंट्स। तो वहां पर जो है वो चीज बैलेंस हो जाती है। सो दिस इज हाउ इट डिफर्स एंड यस इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑन द ग्राउंड कि देखें इट एक्चुअली गिव्स यू समथिंग कि दिस इज हाउ व्हाट हाइपोथेटिकली द प्रोसेस इज। तो ये आपको क्लैरिटी आ जाती है माइंड में कि अच्छा ये स्टेप्स हैं, ये हमने सारे फॉलो करने हैं, एंड देन इवेंचुअली इसका कंक्लूजन होगा। सो दैट्स हाउ इट इज सिमिलर, और डिफरेंसेस जो है हमने डिस्कस कर लिए। Thank you, sir, for the explanation. Sir, what do you suggest to attorneys to prepare for their closing statements, effective closing statements? All right, अच्छा, closing statement depends upon two things: the facts which are proved and the law points which they have researched with. अब जो लॉ पॉइंट्स है ना, वो देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस 5 मिनट की जो आपको ब्रेक मिली उसके अंदर आप तैयार कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो आपकी लीगल रिसर्च है वो पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मैं प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता हूँ। कोई एक डिफेंस का विटनेस है जो कि सिर्फ प्ली ऑफ एलिबाई को जो है प्रूव करने के लिए आया है, और प्रोसिक्यूशन विटनेस ने जो है वो उसकी प्ली ऑफ एलिबाई को शटर कर दिया। सादी जुबान में बात करते हैं, केस हुआ है, अकरेंस हुई है लाहौर में, बंदा अपना विटनेस लेकर आया है डिफेंस का। वो कहते हैं कि जनाबे वाला उस वक्त लेट से मैं था मुल्तान में। उसने उस हवाले से विटनेस भी प्रोड्यूस किया। विटनेस ने आके अपनी एग्जामिनेशन चीफ में कहा कि जी ये मुल्तान में था। क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन अटर्नी ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि उसकी जो टेस्टिमनी है वो डिस्कार्ड हो गई है, और ये प्रूव हो गया कि एटलीस्ट वो मुल्तान में नहीं था। तो सवाल ये है कि क्या ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिया जाए कि वो लाहौर में था और सीन ऑफ अकरेंस के ऊपर में था? इसका जवाब है लीगल रिसर्च के अंदर, कि वहां पर वो कहते हैं कि इवन इफ द प्ली ऑफ एलिबाई इज डिस्कार्डेड, इज नॉट प्रूव्ड, इवन देन द ड्यूटी लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन कि उसने प्रूव करना है कि ये बंदा वाकई ही में सीन ऑफ अकरेंस के ऊपर था। सिर्फ उसका प्ली ऑफ एलिबाई लेकर आना और उसका डिसप्रूव हो जाना, इससे ये चीज साबित नहीं हो जाएगी कि ये बंदा सीन ऑफ अकरेंस पे था। अब ये वाला पॉइंट है लीगल रिसर्च का, ये कैसे तैयार होगा? ये आपकी प्रायर रिसर्च है। अब यहां पर हम खड़े हो गए, टेस्टिमनीज कंक्लूडेड है, आप क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए जो है वो आपने प्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपने बैठ के एग्जैक्टली सारी चीजों की इवैल्यूएट करना है कि सीन ऑफ अकरेंस के ऊपर जो प्रेजेंस है, जो एक्यूज्ड है, उसकी किस हद तक प्रूव हो गई है। जिस हद तक प्रूव हो गई है, आपने वो वाले जो सर्टेन जो पॉइंट्स प्रूव हुए उसको कोर्ट के सामने रीट्रेट करने, बताना है कि विटनेस वन ने जो है ये बात बताई थी कि वो जो है सीन ऑफ अकरेंस के ऊपर था, एंड विच हैज गॉन मतलब उसके ऊपर जो है बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ सकी। सो इट स्टैंड्स प्रूव्ड, एंड द कोर्ट्स हैव हेल्ड कि अच्छा जब यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव हो जाए, सो दिस एंड दैट इट इज कंसीडर्ड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज डन दिस क्राइम। सो इस तरह से उसको लेकर चलेंगे। आपको वो जो एविडेंस वाली बात है ना, उसको लिए बेसिकली 5 मिनट दिए जाते हैं कि आप तैयार कर लें कि आपके विटनेसेस ने क्या कहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन में किस हद तक बात जो सस्टेन हो चुकी है, एंड देन यू हैव टू मेक अ वेरी कंसाइज समरी। लॉर्डशिप, आई हैव डन दिस 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 दिस, therefore the law says this, all these elements are proved,
therefore this person should be convicted. Simple. Please. Thank you, sir. Sir, moving forward, what is the basis or criteria upon which the adjudicators evaluate teams in a mock trial? Just their preparation and their confidence, that's it. सिंपल देखिए, होता ये है कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते एज एन एडजुडिकेटर के आप आजम नजीर तारड़ होंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि आप लतीफ़ कोसा होंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि आप माशाल्लाह कोई भी बड़ा नाम होंगे क्रिमिनल लॉ का या सिविल लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। हम सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर जो आपको एक्टिविटी दी गई थी, वेदर यू वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। सिंपली आपकी मॉक ट्रायल की परफॉर्मेंस में 2 मिनट लगते हैं किसी जज को ये चीज़ चेक करने में कि आपने कितना तैयार किया है, या आप किसी पेपर रीडिंग कर रहे हैं, या आप अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अपना माइंड अप्लाई कर रही हैं, एडजुडिकेटर्स लव दैट एंड दे से कि ओके फाइन, और कॉन्फिडेंस आता है आपकी तैयारी से। मुझे तैयारी हो ना किसी भी सेशन की, लेट्स से इस छोटे से सेशन की अगर हम बात कर लें, अगर इस सेशन की भी तैयारी ना की हो तो शायद मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, ट्राइंग टू वेट द टाइम, बट why I'm on track? Simply because I prepared for it. So this happens when you are in a mock trial. The judge when asks you a question, when you ask the question from the witness, when the witness answers, सारा पता चल जाता है कितनी तैयारी की है, because only the preparation inspires confidence. उससे जो है आगे बात बढ़ती है। अगर आपकी इस स्क्रीन से बियॉन्ड, अगर इन पर्सन कंपटीशन आप करवा रहे हैं, अगर आप स्क्रीन से बियॉन्ड या सामने खड़े होकर जज को ये बता दिया ना कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर में और आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, दे विल मार्क यू वेरी गुड। I couldn't agree more, sir. Sir, now that our audience has an idea of how a mock trial is conducted, what is the primary difference between a moot court competition and a mock trial? Yeah, I have seen this actually, ये कमेंट्स में भी कई क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी आया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जिस तरह से बैक स्क्रीन पे डिस्कस कर रहे थे कि मूड्स का कल्चर काफी हद तक काम हो रहा है, एंड विच इज वेरी वेरी गुड। आई लव दैट कि जितने रिपीटेडली इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इट्स ग्रेट। अगला काम है मॉक ट्रायल्स को भी उस तरह से आम करना, और अब इसमें फ़र्क समझ लेते हैं। देखिए, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में आपका एक डिटेल्ड सेट ऑफ फैक्ट्स है, और सारे सेट ऑफ फैक्ट्स आने के बाद आपका एक पर्टिकुलर इशू ऑफ लॉ है। फैक्ट्स डिस्प्यूटेड नहीं है, लॉ का पॉइंट डिस्प्यूटेड है कि क्या पर्टिकुलर। आज मैं अपनी क्लास में आज सुबह ये दे रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था कि हाउ थिंग्स आर डिस्प्यूटेड। सादा मिसाल उसकी कि क्लास स्टार्ट हुई है 1 बजे, एक स्टूडेंट है जो आया है लेट से 1:09 पे। मैं ये कहता हूँ कि आप लेट आए हैं, वो कहता है कि लेट आना तो उस वक्त होता है कि जब अगर मैं 1:35 पे आया होता तो मैं लेट होता। मैं तो 1:09 पे आया, विच इज ऑन टाइम। मैं भी मान रहा हूँ कि 1:09 पे आया है, वो भी मान रहा है कि 1:09 पे आया है। क्या 1:09 पे आना लेट कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता? दिस डिपेंड्स अपॉन द रूल्स। अब रूल्स को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये चीज सीखी जाती है आपके मूड कंपटीशन में, जिसमें ये कहा जाता है कि लेट्स से कि एक बंदा 9 मिनट लेट है, वेदर इट इज कंसिडर्ड लीगली लेट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। और अगर जो है वो उसका अफर्मेटिव में आंसर है कि यस, एक साइड उसमें कहेगी कि जी 9 मिनट आना लेट है बिकॉज उसको तो 1 बजे क्लास में होना चाहिए था, 1 बजे से पहले। और एक टीम ये कहती है कि नो, इट्स नॉट दैट, लेट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि लेट्स से कि अगर 45 मिनट्स के लेक्चर में कोई 15 मिनट्स पे आए हैं तो ही इज नॉट लेट। सो दिस इज हाउ यू स्पॉट इट। मूड कंपटीशन में सारी की सारी जो आपकी लीगल रिसर्च है ना वो चल रही होती है, जबकि इसी एग्जांपल को हम लेते हैं मॉक ट्रायल के अंदर कि मॉक ट्रायल में फर्क क्या आएगा। मॉक ट्रायल में रिस्पॉन्सिबिलिटी डुअल है। वो कहते हैं कि 11 स्टूडेंट ने मुझे कहा कि लेट्स से कि वो 1:09 पर आए। मैं कहता हूँ आप 1:09 पे नहीं आए, आप 1:29 पे आए। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिस्प्यूट इन फैक्ट। मॉक ट्रायल में जो फैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाते हैं, और लेट्स से कि एक पॉइंट के ऊपर, अच्छा उसमें पहला इशू ये बनेगा कि ये बंदा कितने बजे आया, 1:09 पे है या 1:29 पे है। मैं अपने विटनेसेस लेकर आऊंगा, मैं जो है साथ में वो अपने विटनेसेस लेकर आएगा। अब लेट्स से कि सेटल हो गया कि ये ना 9 पर आया है ना 29 पे आया है, ये आया है 1:19 पे। अगला लीगल क्वेश्चन मॉक ट्रायल के अंदर जो बनता है वो ये बनता है कि क्या 1:19 पर आना लेट कंसिडर होता है कि नहीं होता। सो यानी कि
Mock trial includes the portion of moot, but a moot court competition does not at all include the portion of mock trial. So that is why mock trial is more comprehensive than a moot court competition. However, since we have discussed earlier कि इसमें जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है उसके लिए भी 5 या 10 मिनट दिए जाते हैं, विच मीन्स कि जितनी डिटेल्ड डेलिब्रेशन लॉ पॉइंट के ऊपर एक मूट कोर्ट कंपटीशन में होती है, उतनी डिटेल्ड डेलिब्रेशन एक मॉक ट्रायल में नहीं होती. सो दैट इज वेयर यू हैव टू कीप योर मार्क. उसमें फैक्चुअल प्रूफ करने के बाद लीगली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है, जबकि मूट कोर्ट कंपटीशन इज ऑल अबाउट द लीगल इश्यूज. जितने लीगल इश्यूज फ्रेम हुए हैं उस पर आप लीगल रिसर्च और लीगल ही आंसर करना है. फैक्ट्स में सेम सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, दोनों पार्टीज ने सामने होते हैं, उसमें वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते. सो दिस इज अ डिफरेंस जो कि मेरा ख्याल है कि कन्वे हो गया. Very well explained, sir. Sir, now moving on to the last question. How do you see the future of mock trials, evolving, especially in terms of their impact on legal education or professional development of young law students who are engaging in these mock trials? देखिए ये बहुत जबरदस्त है, और ये इस चीज का आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आना, ये तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त बात है. उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्या है. किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए मूट कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान काम है. मॉक ट्रायल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. और जहाँ पे जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह जो एक स्टेप ले रहे हैं इस चीज को फर्दर प्रोपोगेट करने के लिए, ये बहुत जबरदस्त इस सेंस में है कि बेसिकली जो ट्रायल की चीजें हैं वो स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को यहाँ से नजर आना शुरू होंगी. मूट कोर्ट कंपटीशन जो हमारे पार्टिसिपेंट, जो हमारे फेलो वोटर्स भी हैं, जब वो कर रहे थे और जब पहले भी करते थे, जो सबसे बड़ा हमें ऑब्जेक्शन आता था कि यार हमने इतनी वोटिंग की है, हमने हमेशा जो है वो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाइपोथेटिकली हमने उसके सामने प्लीड की है, या हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हाइपोथेटिकली प्लीड की है. लेकिन जब हम लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होके मार्केट में जाते हैं तो खड़े तो होते हैं हम जाके सिविल जज क्लास 3 या मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30 के सामने. तो वहां पे तो वोटिंग वाला चक्कर ही कोई नहीं है, वो तो एक डिफरेंट ही सीन है. तो बेसिकली जो मॉक ट्रायल है आपको उस रियलिटी के ज्यादा करीब लेकर आ रही है. बिकॉज मूड के अंदर जो बहस होती है, कोई भी लॉ मूटर जो है वो समझ लें कि ग्रेजुएट होने के बाद शायद 10 साल तक भी ना कर सके प्रॉपर्ली, बिकॉज हाई कोर्ट में भी ऑल दो लीगल इश्यूज पे डिस्कशन हो रही होती है, बट उतनी डिटेल्ड डेलिब्रेशन तो नहीं होती है. 2 मिनट की बात सुनते हैं, उसके बाद तो केस आपका जो है वो एक साइड पे डिसाइड कर देते हैं 2 मिनट के अंदर. So this is actually giving the students a very a near to reality perspective कि कैसे actually हो रहा है, कि कैसे ट्रायल आपने कंडक्ट करना है. बिकॉज जाते साथ ही आपको, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट सिंध, मेरा उसके बारे में व्यू नहीं है, बट पंजाब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. पंजाब में अगर आप आज ग्रेजुएट हुए हैं तो 6 महीने तक तो आपके पास लाइसेंस कोई नहीं है, बिकॉज यू आर एन अप्रेंटिस. अप्रेंटिसशिप का टाइम उतारने के बाद आपको मिलना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लाइसेंस, कि जहां पे ट्रायल्स होने, डेलिब्रेशंस या वोटिंग वाले पॉइंट्स नहीं होने, वहां पे सिंपली आपने फैक्ट से प्रूव करने हैं. और उसके 2 साल बाद जाके आपको जो है वो हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलने, जहां पर चांस क्रिएट होता है कि शायद आप अपने कुछ लॉ पॉइंट्स के ऊपर भी ज्यादा डेलिब्रेट अपन कर सकें. सो मॉक ट्रायल में पार्टिसिपेट करना आपको उस चीज के लिए तैयार करेगी कि आप एविडेंस कैसे ज्यादा बेहतर तौर पे जो है वो शहादतें, आम जुबान में शहादतें कैसे रिकॉर्ड करवा सकते हैं, एग्जामिनेशन चीफ में क्या बातें पूछनी है, क्या नहीं पूछनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करनी है, ट्रायल के स्टेप्स क्या हैं, पहले क्या है, बाद में क्या है, किस स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे रिजाइल करने, क्या करना है. ये चीजें आपको जो है मॉक ट्रायल में सिखाई जा रही है, व्हिच इज वंडरफुल. सो दिस थिंग शुड बी रियली प्रोपेगेटेड. आई मीन ऑल द, मेरा तो इसमें मेरा ये ख्याल था, और मैंने जो है इसमें रिक्वेस्ट भी की थी अपने एटलीस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर, यूसीपी के अंदर, कि एक सेमेस्टर में मूट कोर्ट कंपटीशन करवाएं इंट्रा, एक में मॉक ट्रायल करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो दोनों तरीके से पार्टिसिपेट करते रहें और समझते रहें. जब तक हम एनुअल एक जिस तरह जेसप या हेनरी डूना के लेवल के नेशनल मॉक ट्रायल कंपटीशंस नहीं विटनेस करेंगे, तब तक जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर वो जो एक कसक है ना, कि किस तरह हमने उसको गैप को ओवरकम करना है, वो मुकम्मल नहीं हो सकती. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Sir, thank you so very much for answering my questions. So, with your permission, we may now open the floor to the audience for their questions and any queries they might have. Very well. So, can we have the questions on screen, if there are any? बस शाहजेब का मुझे क्वेश्चन जो हो रहा है, मैं इसको पहले आंसर करना चाह रहा था. अच्छा शाहजेब, जी सर. शाहजेब अली, योर क्वेश्चन इज, मैं पहले बोल देता हूँ फिर उसको मैं आंसर कर देता हूँ.
Kindly requested to share with audience regarding how written submissions are different in mock trials from those in moot courts. अच्छा, अभी तक मैंने 4 से 5 जो मॉक ट्रायल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया है, और किसी एक में भी जो है हम रिटन सबमिशंस नहीं लेते। हम सिर्फ ओरल सबमिशंस पे ही जो है वो उनसे जो है रिलाय कर रहे होते हैं कि आप ओरली बताएं, सिर्फ जजेस बैठे हैं, सुन रहे हैं। रिटन मेमोरियल्स नहीं बनाए जाते। मतलब समझ लें कि अदर देन द थिंग कि आपके जो सेट ऑफ फैक्ट्स जो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, या मैंने यह पहले डिस्कशन हो रही थी कि इसको कैसे कंडक्ट करें, तो मैंने ये कहा था कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, या तो जो है वो जो ऑर्गेनाइजर है वो खुद उसको जो है वो दे दे, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतना ज्यादा क्रिएट कर दे कि एग्जामिनेशन चीफ के लिए अच्छा मवाद क्रिएट हो जाए, या फिर जो है ऐसा हो कि एक पार्टी अगर एग्जामिनेशन इन चीफ तैयार कर लेती है तो रिटन फॉर्म में पहले ही सबमिट करवा दे, ताकि वो दूसरी पार्टीज के लिए एक्सेसिबल हो। क्योंकि उसमें से जो है जब वो जो पॉइंट्स भी जो है वो अपने ड्यूरिंग देयर डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो है वो सबमिट बोलेंगे, वो पॉइंट्स प्रूफ समझे जाए और फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाए। सो ये दो डिफरेंट आइडियाज हैं, बट कटिंग इट शॉर्ट शाहजेब, मूट कोर्ट में आपने रिटन मेमोरियल्स बहुत डिटेल में सबमिट करवाने होते हैं। मॉक ट्रायल्स में एज सच कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ओवर द टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसमें चेंजिंग करना चाहें तो फॉर पब्लिक इंटरेस्ट या फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डेफिनेटली की जा सकती हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल यही है कि उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मॉक ट्रायल में अदरवाइज स्टूडेंट्स बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं। मूड में तो चले गए ना कि पहले लीगल रिसर्च कंप्लीट कर लिया और आके बोल दिया है, बुक में उसकी जरूरत नहीं है। सो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir. हाउ We टू, have another question. जी. प्लीज आप बोलिए मुझसे। Anas Ahmed Jan is asking means how to make the leading questions more effective. ऑलराइट, लीडिंग क्वेश्चंस मोर इफेक्टिव डायरेक्ट कोर्स एग्जामिनेशन में इस तरीके से बन सकते हैं कि जिसने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट या सेट ऑफ फैक्ट को जो है असर्ट किया है ना, आप डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट से उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करें। इसका सबसे आसान तरीका जो होता है वो यही होता है कि कोई आपके पास ऐसा उसकी मटेरियल बात मौजूद हो जिसमें से आप जो है वो डिफरेंट एक चीज निकाल सकें। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पिछले वाली एग्जांपल से लेते हैं कि हमने तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया था ना, उसको कटिंग इट शॉर्ट के। अच्छा, आपने कहा कि आप 7:35 पे कैंट में थे और आपको पता है कि आप लेट्स से डायरेक्ट एग्जामिनेशन या रीडिंग क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या आप 7:50 पे बहरिया टाउन में थे। ये तो डायरेक्टली हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बेसिकली डिफरेंट एक स्कीम होती है। असल में सेट ऑफ फैक्ट्स में बात डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन एक आपको बताता हूँ स्कीम क्या होती है। स्कीम ये होती है कि बिलफर्ज सवाल ये हो सकते हैं असल में कि शाम 8 बजे क्या आपके लेट्स से कि बेटे को एकेडमी से छुट्टी होती है? तो वो कहते हैं जी होती है। कहते हैं अच्छा, आपके बेटे की एकेडमी कहाँ पे? वो कहते हैं जी वो बहरिया टाउन में। अच्छा, और आपके बेटे को जो आप ही लेने जाते हैं रेगुलरली? वो कहते हैं जी मैं ही लेने जाता हूँ। कहते हैं फिर इसका मतलब है कि उस दिन भी आप ही गए होंगे। दिस इज द डिसाइडिंग क्वेश्चन। अगर वो कह देते कि जी मैं ही गया था, इसका फिर क्या मतलब हुआ? फिर इसका अगला सवाल ये बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो 7:50 पे बहरिया टाउन में थे, या 8 बजे आप बहरिया टाउन में थे, और बस वो कहेगा जी। अब अगर उसने जी कह दिया तो यहाँ पर आपने रुक जाना है, इससे आगे एक सवाल नहीं पूछना, बस क्लोज। उसे आप जो है वो भेज दें। इस पॉइंट को आपने उठाना है अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में कि योर ऑनर, वो बंदा खुद मान रहा है कि 8 बजे ये इंसिडेंट देखने के बाद वो अपने बेटे को लेने जो है बहरिया टाउन में पहुंच गया था। इस इंसिडेंट के बाद जिसकी वो गवाही देने आए हैं, वो नहीं बता रहा कि वो हॉस्पिटल गया था उसको लेकर, या वो साथ गया था, या थाने रिपोर्ट लिखवाने गया था, या जो भी उसमें फर्दर कार्रवाई हुई है उसमें हिस्सा था नहीं था, वो कुछ नहीं बता रहा। वो ये बता रहा है कि वो तो अपने बेटे को लेने बहरिया टाउन में था। तो ऐसा बंदा जो कि अपने बेटे को लेने बहरिया टाउन में था, वो 25 मिनट पहले 50 किलोमीटर दूर हुए वकुए की गवाही कैसे दे सकता है? This is the thing that how you actually make your mind. So आपको ये देखना है कि इसको एग्जैक्टली किस तरह से चले। Sir, School of IT Experts is asking, sir, what are the responsibilities of attorneys? I think it's been Well, we have discussed thoroughly before, but discussed it. yes, but if you can like summarize it, or it's been चलिए addressed. समराइज कर देते हैं आपके क्वेश्चन को। अटर्नीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अगर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपने पूरे केस को इफेक्टिवली सम अप करना है। जब आप अपनी विटनेसेस के साथ एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो आपने अपना जो एग्जामिनेशन इन चीफ है उसके अंदर आपने अपने विटनेस को इतने थोरो क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो मुकम्मल केस को प्रूव कर सके। और अगर आप उसकी जो किसी दूसरे विटनेस को जो है अगर आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो आपने उसकी जो स्टेटमेंट है उससे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाने की कोशिश करनी है। दैट्स इट, दैट्स 3 जॉब्स, दैट्स इट।
Sir, Mehrunissa is asking, what if the attorney could not disprove the facts stated by the witness in cross examination? It doesn't matter in a mock trial. It doesn't matter if you are actually able to disprove it or not. What matters is the quality of your questions. If to me as an adjudicator, if I think that you are making your best effort to try to shake this witness on a particular set of fact, एंड वो शेक नहीं हो पा रहा, वो शेक इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो बिल्कुल सच है। याद रखिए, अगर कोई विटनेस किसी चीज के ऊपर शेक नहीं हो पाए, इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है। तो अगर एक चीज सच बोली जा रही है और आप उसको जो है वो डिस्प्रूव नहीं कर पाए, नथिंग टू वरी। What matters is the scheme and the line of your questioning, that how you took it, what questions did you ask. It doesn't matter on his answers, उसके आंसर्स रेलिवेंट हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। आपकी हद तक ये रेलिवेंट है कि आपने सवाल क्या पूछा। Sir, Chaudhary Ehsan Raza is asking, I'm good in legal research in point of law and fact. I'm good in understanding, listening, and writing the English, but I'm not fluent in English. So, what would I miss such opportunities like mock trial and moots? एहसान भाई सादी बात करते हैं, अंग्रेजी हमारी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सादा जुबान में सादा सही जगह से उठ के जो है हमने चीज़ें सीखी हैं। आप भी कोशिश कीजिए, इसको सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो ये लिमिटेशन क्रिएट करेगी। सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और एक चीज़ याद रखें, इंटरनेशनल मूड्स में आपका एक्सेंट, ये चीज़ें मैटर करती होंगी। जो नेशनल मूड्स हैं या जिस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ आप जनरली मिलती हैं, उसके अंदर आपका एक्सेंट मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप बात कर कैसे रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसमें क्या वज़न है या नहीं है। जज जो है ना, उनकी अपनी भी अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आपको इस वजह से परेशान नहीं होना है। आपने सोचना ये है कि जो पॉइंट आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या वो कम्युनिकेट हो रहा है? अगर वो कम्युनिकेट हो रहा है और जैसी मर्ज़ी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में हो रहा है, वो हो जाएगा। और इंग्लिश का तो सिंपल तरीका है, आप बार-बार बोलते रहिए, उसको अपने जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आते रहिए। यू विल बी वेरी फाइन इन दैट रिगार्ड इंशाल्लाह। Inshallah. Sir, with your permission, can I ask a personal question? येस प्लीज़। Uh, Sir, the question I wanted to ask is, who is recording the cross examination and the examination in chief? Like, is it the attorneys and the team who are going to be recording the statements of the witnesses when they're येस, doing cross अच्छा, examinations? अच्छा नहीं, अच्छा, जो रिकॉर्ड आप मतलब समझ लें कि तहरीरी तौर पे कौन उसको नोट कर रहा होता है, उसमें 2 तरीके Yes, हैं। sir. एक तो ये है कि आपके अपने भी जो विटनेसेस, जो आपके जो अपने अटॉर्नीज़ हैं, उनको नोट करना चाहिए, लेकिन इसको मेनली जज भी नोट कर रहे होते हैं। आपको खुद इसलिए नोट करना है जनाब, और आपकी क्रॉस जो आपने जो अपोज़िट काउंसिल की जो चल रही है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन इन चीफ सॉरी अपोज़िट विटनेस की, आपने वो भी रिकॉर्ड करनी है। वो आपने इसलिए रिकॉर्ड करनी है बिकॉज़ उसमें से तो आपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करनी है। सो इट्स लाइक, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आपको जो है वो कहीं रिकॉर्ड करके प्रेज़ेंट करनी है। आपको उसके बस की पॉइंटर्स बनाने हैं साथ-साथ। जैसे समझ लें कि 1 मिनट के लिए समझ लें कि आप विटनेस हैं, मैं अटॉर्नी हूँ, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप उसके जो है जवाब दे रही हैं। उन पॉइंट्स को मैं खुद भी साथ-साथ नोट कर रहा हूँ कि आपने ये जवाब दिए, आपकी टीम मेंबर्स भी नोट कर रही हैं और आपकी जो अपोज़िट टीम है वो भी नोट कर रही है, जज भी नोट कर रहे हैं। बिकॉज़ उन्हीं जवाबों की बुनियाद पर तो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आनी है। उन्हीं जवाबों की बात बुनियाद पे तो जज ने समझना है कि अच्छा क्या पॉइंट प्रूव हुए, क्या नहीं प्रूव हुआ। आप एक चीज़ कह देती हैं बिल फर्स्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट में जाके कि ये पॉइंट प्रूव्ड है। जज ने जो है वो आपकी जो सुनी थी और जज की जो नोटिंग्स है, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप या तो ब्लफ कर रही हैं या फिर जज का सही तरीके से ध्यान नहीं था। अब दोनों सूरतों में अगर जज का सही तरीके से ध्यान नहीं भी था, तो इसमें नुकसान तो आपका हुआ ना। तो आप फिर क्या करते हैं? ड्यूरिंग एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हुए, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फैक्ट को, वो जो है था ना, जज साहब कह देते होते कभी-कभी कि सर प्लीज़ नोट। ठीक है? कभी-कभी जजेस इस बात गुस्सा कर जाते हैं कि हम यार नोट करने के लिए सुन रहे हैं, ज़रा जारी रखें। ठीक है? लेकिन अदरवाइज़ जो अगर आपको लगे कि जजेस जो हैं वो बहुत ही समझ लेथार्जिक हो चुकी हैं, बातें सुन-सुन के तंग आ गए, अब देखिए ना, आप सुने कि हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, हम इसमें जो है रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आई एम एक्टिव। 2 लोग दूसरे आपस में ही बात कर रहे होंगे, तो एक जज के लिए भी अपना एक माइंड को एक्टिव रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू पिंच कि जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप जो कोर्ट है, उसको बताते हैं कि सर ये पॉइंट ज़्यादा नोट करने वाले। दैट्स हाउ यू डील विद इट। So thank you for answering my question. If there are more questions, we can have them on the screen. Yes, there was a question of Zara Zafar. Can you explain how many rounds will be there? Yes, definitely. देखिए, I was hoping
कि इस कंपटीशन में जो है वो एटलीस्ट 2 राउंड्स होने चाहिए एक टीम को एज अ प्रोसिक्यूशन, और अगर वो प्लेंटिफ साइड, आई डोंट नो कि सिविल या क्रिमिनल कर रहे हैं अभी के लिए, बट अगर वो प्रोसिक्यूशन है तो उसको डिफेंस के तौर पे भी होना है, वरना जो बात है वो मुकम्मल तौर पे मजा नहीं आएगा जब तक एक टीम दोनों साइड से प्रेजेंट नहीं करेगी ना, बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगी। सो उसका बेहतर तरीका यही है कि टीम्स को 2 राउंड्स का मौका मिलना चाहिए। अगर उसमें कोई एक में कमी कोताही रह भी जाए तो उसके पास पहले अपॉर्चुनिटी हो अगले राउंड में कवर अप करने की। एंड आई हैव सीन दिस इन अदर मॉक ट्रायल्स कि वन टीम विच वाज नॉट वेरी गुड इन द फर्स्ट राउंड, हमने उसको जो है जब हमने फीडबैक उसको दिया कि आप ये चीजें इंप्रूव करें, इन द सेकंड राउंड जब मैंने एडजुडिकेट किया उनको, दे वर वंडरफुल। सो इन सारी एक्टिविटीज का जो मकसद होना चाहिए वो हार जीत ये नहीं होता बिल्कुल भी। हमने एक मूड भी मैंने इस नियत से नहीं किया कि हम कोई जीत जाए, नेवर। मूडिंग का मकसद होता है कॉन्फिडेंस आना, उसका मकसद नेटवर्किंग करना, चीजें सीखना, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। Sir, Wasim Khan is asking any advice for young lawyers or law students. Just take part, just participate in as many competitions as you can. As many competitions. Those competitions will refine you. I mean, I truly feel at a disadvantage कि मेरी during my law studies मेरे जो 2 साल थे वो कोविड की नज़र हो गए, and we could not effectively participate in person in many competitions जो कि हमें करना चाहिए था. So we actually missed out many opportunities and many eras of networking. तो ये मूक ट्रायल्स और मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वकालत के लिए मैं आपको खुली बात बताता हूँ, ये इसलिए ज़रूरी नहीं होते हैं कि आप जो है कि बहुत तगड़े वकील बनते हैं, इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपकी पीआर बनती है, इससे नेटवर्किंग क्रिएट होती है, आप सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। हमने तो जो कुछ सीखा है समझ लें कि अपने बहुत सारे जो मूटिंग के अंदर सीनियर्स हैं उनसे सीखे। अली सैन रजा भाई, बैरिस्टर अली सैन रजा, उनसे हम इंस्पायर्ड थे बैक इन 2018, उनके नक्शे कदम पे हमने कोशिश करते रहे। हम खुद वो मीटिंग से काफ़ी हद तक गायब हैं लेकिन हम उनको हमेशा याद रखते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू इट। Sir, thank you so very much. I think we'll be concluding the session. Ladies and gentlemen, as we come to the close of today's webinar, I want to express my sincerest gratitude to our esteemed guest speaker. Sir, your evident dedication to this field is truly appreciated, and we sincerely thank you for generously sharing your time and your insight during today's discussion. With that being said, ladies and gentlemen, we have reached the end of yet another stimulating and genuinely remarkable webinar. On behalf of Law Students Council, I would like to thank all the participants for joining us today. Indeed, your active participation has been instrumental in making this webinar a success. I hope that you have learned something new today. We will be back with another webinar on mock trials and another distinguished guest. Thank you so much, sir. Any concluding remarks that you would like to share? No, I guess it was just very well concluded and it's wonderful. बस ये है कि since there might be certain questions and being a young lawyer myself, I'm always open to guidance. तो if you have any group or anything, वहाँ पे आप जो है मेरी LinkedIn के जो credentials हैं वो share कर सकते हैं, so people can approach me there. Wish you Surely, best. sir. Thank you so much, sir. Thank you. Till then, stay connected with us on our social media platforms for updates on future webinars and events. Goodbye and Allah Hafiz.